Hi everyone, I'm Gaurav and I am here again to have a new session on communication skills. So this is our session 4 and we will discuss a number of questions that are being asked in the interviews. So without wasting time, let's start with the first question, that is, tell me about a situation where you failed and you are ashamed of. ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज में टू आइडेंटिफाई कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो इमोशनली। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ड एंड यू आर ashamed of, you have to be prepared with an answer, विथ अ सिचुएशन। आप ऐसा जवाब आपको देना है जहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? लेट मी ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, I will reply that when I was a fresher or when I was new to the industry, right? I faced one situation where I was assigned one critical bug, right? So I fixed the bug, and I had a doubt on one line of code, that what is the importance of this particular line, whether we shall put push or commit into the build or not. So I left it. And what happened is that the next day the QA caught it, and the build got failed, and we had to analyze it, fix it, and then again release it to the QA. And what I identified is that it was the same line that I had to incorporate again, put into the build. So what I failed, although I am not ashamed of this situation, but what I learned from this situation is that if you have a doubt, even a single doubt on a particular line of code, a particular block, a particular function, a particular class in which you are working, you shall verify that whether what is the importance of it is, in your fix or in your build or not, right? So we shall analyze it properly, and once we are convinced, then only we shall release it to the QA, right, for verification. सो जब ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इस तरह से आंसर देता हूँ कि आई एक्सप्लेन द सिचुएशन क्लियरली। आई टोल्ड दैट कि मैं असेम्ड नहीं हूँ उससे, बट इससे मैंने कुछ सीखा, और व्हाट आई लर्नड इज कि कोई भी अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है जब आप इसे फिक्स कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और आपके माइंड में ये है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से और इस पर्टिकुलर प्रोसेस से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, देन इट्स बेटर टू वेरीफाई बिफोर रिलीजिंग इट, राइट, और बिफोर कंप्लीटिंग इट। सो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ड एंड यू आर असेम्ड ऑफ, तो आपको एक पॉजिटिव आंसर देना है। इसके लिए बेटर है कि आप एक सिचुएशन के साथ प्रिपेयर रहो और उसका रिस्पॉन्स दो, राइट। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर योर वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड, राइट। मतलब कि एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताइए जब आपने काम भी किया और आपका काम क्रिटिसाइज भी हुआ। अगेन, ये कई बार लोग इमोशनल होके इस बात का जवाब देते हैं कि माय लीड शोज मी इन बैड लाइट, और माय लीड ऑलवेज क्रिटिसाइजेस माय वर्क, और माय मैनेजर ऑलवेज क्रिटिसाइज माय वर्क। इस तरह की इमोशनल थिंग्स आपको इंटरव्यू में नहीं बोलनी है। इस तरीके का अगेन जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिचुएशन प्रिपेयर करके रखना है, राइट। तो जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड, तो मैंने ऑलरेडी एक सिचुएशन तैयार कर रखा है जो मैंने फेस किया था कि when this question is being asked, how I answer, let's see. So I was working on a project, and I had delivered whatever the development changes were done, I had delivered it, and I was doing the integration was passed. But what happened is that in acceptance phase, where the customer had to accept our product, he identified couple of bugs, and he rejected our integration, right. Why he rejected our integration, and what happened exactly is that we as a team missed few test cases that were to be incorporated and tested because of the version porting between, like, or migration between the two product versions. What happened is that we missed certain test cases, and those test cases were executed by the uh, by the customer, and as those test cases failed, our integration was failed. Although it was as a team we missed to put those test cases into the test plans and verify them during validation or integration. We missed it. But what we did is that we identified those test cases, asked the customer for next 2 weeks to verify whatever test cases are missed. We identified those test cases from our previous test plans and incorporated them, verified them, and then gave a more stable bill to the customer. And the customer was happy. And after only 80% of the verification, he accepted our project. So this scenario I explained to the interviewers whenever they ask me. Now you see, I have given information about a situation where we as a team failed to achieve a particular timeline, although it was not criticized but it was rejected, and we as a team completely uh, addressed it and provided the customer with a good product, right. So again, I am showing here positive intent. A situation is clear, and I am showing here positive intent and what I learned from it, right. So
when this kind of situation again are asked, you have to be prepared with one answer, right? You can only answer perfectly जब आप एक situation को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखोगे। आपको सिचुएशन प्रिपेयर करना है क्लियरली। डू नॉट ब्लेम एनी पर्सन और एनी टीम, राइट? डू नॉट ब्लेम एनी पर्सन। जब आप किसी पर्सन को इंटरव्यू में या किसी टीम को इंटरव्यू में ब्लेम करते हो, दैट शोज यू इन नेगेटिव लाइट, राइट? तो आपको पॉजिटिवली उसको लेना है कि उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए, आपने क्या किया, और वहां पे आपको अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटेंट दिखाना है। मतलब आपकी जो अप्रोच थी उस सॉल्यूशन उस सिचुएशन को हैंडल करने की, दैट वाज पॉजिटिव। तो ये आपको अपने आंसर में बताना है। एक और क्वेश्चन है, अगेन दिस इज आल्सो रिलेटेड टू इमोशनल चेक क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कि लुकिंग बैक व्हाट कुड यू हैव डन बेटर। अब ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो दैट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। कई लोग कहते हैं कि मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे ये करना था। कई लोग कहते हैं कि मुझे डिप्लोमा नहीं करना था, मुझे बीटेक करना था। दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक shows कि यू आर स्टिल इन रिग्रेट ऑफ योर पास्ट डिसीजंस, राइट? तो इट्स बेटर कि कुछ ऐसी चीजें लेके आओ जिससे कि लगे कि हाँ, आप अपने पास्ट पास्ट डिसीजन से खुश नहीं हो और यू कुड हैव डन बेटर। तो क्या कर सकते हैं, लेट्स सी कि क्या ऐसे आंसर्स हो सकते हैं। मैं कभी कभी ये आंसर देता हूँ कि आई कुड हैव फोकस्ड मोर ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। कई बार जब आप अ, अ, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो तो लाइक बीटेक और समथिंग, कई बार जब आप इंडस्ट्री में नए नए जाते हो तो यू स्टार्ट लूजिंग फोकस ऑन योर फिजिकल एक्टिविटीज, राइट? आप जिम जाना बंद कर देते हो, जॉगिंग बंद कर देते हो, रनिंग बंद कर देते हो, वॉकिंग बंद कर देते हो। और कई बार आप उस प्रोसेस में इतने इन्वॉल्व रहते हो अपने स्टडीज में या व्हेन यू आर फ्रेशर इन योर वर्क कि आप इन चीजों को नेग्लेक्ट करने लग जाते हो। दैट्स नॉट बी नेग्लेक्टेड। एंड व्हेन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्क्ड, आई सर्टेनली टेल many times that I should have focused more on my physical activities or on my health activities, right? एक आंसर ये हुआ। दूसरा, आप ये बोल सकते हो कि I could have focused more on improving my communication skills, right? And I feel that I could have focused whatever I am doing right now to improve my communication skills, I could have done earlier and it would have helped in my career. I could have focused more on my technological skills, right? टेक्नोलॉजी स्किल्स आई कुड हैव इम्प्रूव्ड इट मोर बेटर। सो इस तरीके से जब आप आंसर देते हो तो ये लगता है कि हाँ, कि कोई आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए था, और आप मूविंग बैक आपको कोई रिग्रेट नहीं है, और आप उस पे इन चीजों पे आप पॉजिटिवली काम कर सकते हो। मोर बेटर आप कहो कि नाउ आई एम नाउ although now I am getting sufficient time to work on these activities, I am focusing on my health, or I am focusing on my communication skills, or I am focusing on improving my टेक्निकल स्किल्स। इस तरीके से जब आप आंसर को फ्रेम करोगे तो ये शो करेगा कि आप जानते हो कि आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए था, एंड यू आर डूइंग इट नाउ, राइट? तो ये शो करता है कि आप चीजों को पॉजिटिवली ले रहे हो। मैं हर बार हर क्वेश्चन में ये कहता हूँ कि जब इस तरीके की क्वेश्चंस पूछी जाए तो आपको पॉजिटिवली आंसर देना है। ये नहीं करना है, कहना है कि मैंने घर वालों के दबाव में आके बीटेक कर लिया था। इस तरीके के क्वेश्चन शो करते हैं कि आपने सही समय पे डिसीजन नहीं लिया एंड यू डिडंट केम आउट ऑफ इट, यू आर स्टिल हैविंग रिग्रेट ऑफ इट, राइट? तो इस तरीके से आंसर फ्रेम करना है। ऐसे सिचुएशन दो जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो, और ये शो करो कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो। इस तरीके से जब बताओगे तो एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इमोशनल चेक क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। हमने 3 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो अगेन इमोशनल चेक क्वेश्चंस हैं। आपके इमोशंस को चेक किया जाता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। कई लोग इमोशनल होके काफी नेगेटिव आंसर देने लग जाते हैं इंटरव्यू में, जो अवॉइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट करंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन मैं कई बार इंटरव्यू प्रिपरेशंस में बताता हूँ लोगों को कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आपको न्यूट्रल रहना है। कई लोग कहते हैं कि आई सपोर्ट बीजेपी, आई सपोर्ट बीजेपी, आई सपोर्ट कांग्रेस, आई सपोर्ट एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी, और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आई हैव वन वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल जहां पे एक बंदा सारे राउंड्स क्लियर कर रखा था और उसने लास्ट राउंड में एचआर को ये बोल दिया कि आई हैव पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड आई सपोर्ट बीजेपी, एंड ही वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट करंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स बेटर टू बी न्यूट्रल। आप न्यूट्रल रहिए। ये बताइए कि एवरी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इट्स ओन challenges, right? And only the time will tell that how they are performing. Apart from that, I do not have much like thoughts about the current state and the central government. You just avoid this question by being neutral. आपको किसी स्टेट, और हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो कांग्रेस सपोर्टर है और आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरव्यू में। सामने वाला बंदा आपके स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पसंद कर रहा है और आप उस स्टेट गवर्नमेंट को
के बारे में पॉजिटिव चीजें बता रहे हो, तो माइट बी पॉसिबल कि आप रिजेक्ट हो जाओ। ये सारी चीजें, दीज आर इंटरव्यू बायस यू कैन से, कि जो कि इंटरव्यूज में होती हैं। ये होती हैं कि आप इस तरीके के आंसर्स रिलीजन पे, पॉलिटिकल स्टैंड पे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे अपना अगर कोई ओपिनियन देते हो, तो देन यू माइट गेट रिजेक्टेड बिकॉज द इंटरव्यू डिडंट लाइक इट, राइट। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड करना है और ट्राई करना है कि न्यूट्रली कैसे इस क्वेश्चंस को आंसर देके इससे बाहर निकल जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन अगेन इट इज अ मोस्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील अबाउट रिपोर्टिंग अ यंगर पर्सन। ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, तो अगेन सपोज करो कि आपने मास्टर्स डिग्री की, आपकी उम्र 28 ईयर्स है, और अब आपने मास्टर्स डिग्री की, आपकी उम्र 28 ईयर्स है, और आप स्टिल एक स्टार्टिंग डिजिग्नेशन पे हो, आप मूव नहीं किए बहुत जल्दी अपने अपने कैरियर में। और अब आप जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो आपसे छोटे बंदे जो बीटेक ये करके बीटेक या कोई अच्छी ग्रेजुएशन डिग्री कहीं से लेके आए हैं, वो आपसे हाई पोजीशन पे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइनली बनता है कि हाउ यू विल रिस्पॉन्ड। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाए, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि आई विल फील असेम्ड एंड आई विल फील नॉट गुड अबाउट इट, आई विल नॉट फील गुड अबाउट रिपोर्टिंग अ यंगर पर्सन। इवन रिपोर्टिंग अ यंगर पर्सन गिव्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम देम, एंड इट्स हिज हार्ड वर्क that he has put into his career, that he is now at such a good position at a young age. तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए कि आई डू नॉट फील एनीथिंग नेगेटिव अबाउट रिपोर्टिंग अ यंगर पर्सन, आई एम happy and I will feel motivated to work with him. I will try to learn as much as from him, because at such a younger age he has achieved so much in his career, right? So that will make me motivated to work more hard to achieve better in my career. तो इस तरीके से पॉजिटिव आंसर आपको देना है। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन, कि हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट्स एट नाइट्स एंड वीकेंड्स। देखिए, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो कई लोग सीधे मना कर देते हैं, आई कैन नॉट वर्क एट नाइट्स एंड वीकेंड्स। अगेन, ये आपका स्ट्रिक्ट नेचर शो करता है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जब आप फ्रेशर्स हो, स्टार्टिंग में हो अपने कैरियर के, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग एट नाइट्स एंड वीकेंड्स, तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबल होना है। यू शैल टेल दैट दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ माय करियर एंड आई एम क्वाइट ओपन वर्किंग एट नाइट्स एंड वीकेंड्स इफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स। ये लाइन आप ऐड कर सकते हो, इफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स। आप हमेशा क्यों नाइट और वीकेंड्स पे वर्क करोगे? प्रोजेक्ट में अगर कोई क्रिटिकल टाइमलाइन है, तब आप वर्क करोगे। जब आपको 5 साल या उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू कैन मेंशन दैट इफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, I am open to working nights and weekends, but I also would like to have a more work-life balance. So every nights and weekends, I will not be more comfortable working. जब आपको 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है बोलने की कि आई ऑल्सो प्रेफर वर्क लाइफ बैलेंस। फ्रेशर में हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को करोगे, बट स्टिल यू कैन मेंशन दैट एवरी नाइट्स एंड वीकेंड्स आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, as I will have my personal responsibilities. I am staying away from my home, or I have this XYZ personal responsibility. So every nights and weekends won't be possible, but I will always be available as per the project timelines. ठीक है? तो ये 5-6 हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया आज। आप लोग भी इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। आई विल सजेस्ट कि आप कॉपी कलम पे ऐसे सिचुएशंस को बनाइए, ऐसे आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए, और इंटरव्यूज में अपीयर होने से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए। दैट विल सर्टेनली हेल्प यू। तो क्या क्या क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया? Tell me about a situation where you failed and you are ashamed of. Tell me about a situation where your work was criticized. Looking back, what you could have done better, right? Then, what do you think about the current state and the central government? What do you feel about reporting a younger person? How do you feel about working at nights and weekends? मेन हमें क्या मोटिव रखना है कि हमेशा पॉजिटिवली अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आंसर्स देनी है, और प्रिपेयर करके देनी है, एंड देन यू विल फील कि आपको कॉन्फिडेंस भी उतना आ रहा है, आप इंटरव्यूज में हेजिटेट भी नहीं कर रहे हो, एंड यू आर positively and positively approaching those questions and the interviews. Hope you guys like this session. एक सेशन हम और करेंगे जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक 4 सेशन में हमने 24 टू 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एक सेशन हम लोग और करेंगे जिसमें कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।